Hello dear students, this is Bhagyesh Shivankade from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the last lecture, that is lecture number 5, multiple access, from the unit number 4, multiplexing and multiple access, from the subject digital communication system, whose subject code is 22428. The vision of the department is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. To fulfill this vision, we have 5 mission statements. The first one is imparting quality education for to meet society and industry needs. Second is provide ethical and outcome based education for the development. Third is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Fourth one is enhance the leadership skill and employability or higher education. Fifth is seeking continuous improvement of knowledge and skill. The the three program educational objectives are: first one is provide socially responsible environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problems adapting professional ethics. Second is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environments. Third is solve broad based problems individually and as a team member communicating effectively in the world of work. The prerequisite knowledge means for completion of today's topic, we should have the prior knowledge of some or concept of some topics, that is sampling process, sampling theorem, Nyquist rate, Nyquist interval, types of sampling, flat top sampling and natural sampling, quantization, compounding, PCM, DPCM, delta modulation, ADM, ASK, FSK, PSK, QPSK and QAM, and concept of multiplexing and demultiplexing, which we have already covered in the previous lectures. Now the course outcome related to this today's topic is multiplex and demultiplex digital signals, as today's topic belongs to unit number 4 and course outcome of unit number 4 is this CO4. So here is the mapping of CO4 with the 7 POs and we have given here. नाउ द लर्निंग आउटकम मीन्स आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं. सो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एक्सेस का मतलब पता चलेगा. इसके बाद कौन कौन से टाइप्स के डिफरेंट मल्टीपल एक्सेस होते हैं और उन सभी टाइप्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं ये आज हम देखेंगे. सो मल्टीपल एक्सेस का मतलब क्या है. जैसे हमने TDM देखा तो उसमें टाइम डिवाइड होता है हर यूज़र के बीच में, यानी यूज़र एक एक यूज़र जो है उनको अलग अलग टाइम स्लॉट अलॉट किया जाएगा, लेकिन वो पूरी की पूरी बैंडविड्थ यूज़ कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या कहा था हम लोगों ने कि जितने भी यूज़र्स हैं उनमें फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो जाएगी, लेकिन वो एट द सेम टाइम अपना सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं. और WDM में इट्स अ एडवांस वर्जन ऑफ FDM. WDM में सिर्फ जो सिग्नल होते हैं वो लाइट के फॉर्म में होते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ हम वेवलेंथ को डिवाइड कर देते हैं. लेकिन FDM और TDM और WDM ये जो भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ चुके हैं वो एक ही मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ा है. यानी एक मल्टीप्लेक्सर नंबर ऑफ़ सिग्नल्स को ऐड करेगा और उसको कॉमन चैनल पे ट्रांसमिट कर देगा. लेकिन ऐसे बहुत सारी मल्टीप्लेक्सर्स अवेलेबल है. सपोज़ मैं एग्जांपल देती हूँ. आपका एक पर्टिकुलर एरिया है, आपकी एक कॉलोनी है, आपके कॉलोनी में 100 लोग रहते हैं. तो 100 लोग भी अगर सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो टोटल 100 लोगों का मिला के एक सिग्नल कन्वर्ट करना, तो हमें एक मल्टीप्लेक्सर लगेगा. वो एक मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, वो 100 लोगों के सिग्नल को कंप्लीट एक सिग्नल में, कंपोजिट सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा. तो ये हो गया एक मल्टीप्लेक्सर. तो आपके कॉलोनी के साइड में दूसरी कॉलोनी है, दूसरे कॉलोनी में भी अगर 50 लोग रह रहे हैं तो वो 50 लोगों का भी हमको एक सिग्नल कन्वर्ट करना है. तो वो सेकेंड कॉलोनी के लिए भी हमें क्या लगेगा, एक मल्टीप्लेक्सर लगेगा. तो ये मल्टीप्लेक्सर सेकेंड वाला मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, वो 50 लोगों को मिला के एक कंप्लीट सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा. और तीसरी कॉलोनी है और चौथी कॉलोनी है, ऐसे करके पूरा एक शहर अगर हम कंसिडर करते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ़ मल्टीप्लेक्सर. अब हम क्या करते हैं, ये जो भी मल्टीप्लेक्सर्स है, तो सपोज़ हमारे पास पूरे 50 मल्टीप्लेक्सर्स है, तो अभी ये 50 मल्टीप्लेक्सर को भी एक साथ कंबाइन करके एक मल्टीप्लेक्सर में लगा के उसका एक कंबाइन सिग्नल हम सैटेलाइट तक भेजते हैं, है ना. तो इस चीज़ को कहा जाता है मल्टीपल एक्सेस. तो मल्टीपल एक्सेस में एक यूज़र नहीं, अनगिनत यूज़र को हम यूज़ कर सकते हैं. यानी नंबर ऑफ़ यूज़र्स आर मोर
number of transmitters are more and number of receivers are more. In that case we are using multiple access techniques. So multiple access techniques are the techniques in which the total bandwidth of the common link is shared in frequency domain, टाइम डोमेन और थ्रू कोड्स. अगर वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है तो उसको एफडीएमए कहेंगे, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. टाइम डोमेन में अगर हम उस फ्रीक्वेंसी को शेयर करते हैं तो उसको टीडीएमए कहेंगे, और थ्रू कोड्स कहेंगे तो उसको सीडीएमए कहेंगे. सो मल्टीपल एक्सेस मेथड्स आर यूज इन सैटेलाइट नेटवर्क्स, जहाँ पे कंप्लीट अर्थ पे या पूरे इंडिया में जितने भी ट्रांसमीटर्स हैं उनके सारे सिग्नल सैटेलाइट तक जाएंगे, सैटेलाइट से वापस वो रिसीवर तक आते हैं. सो सैटेलाइट नेटवर्क, सेल्यूलर एंड मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड अंडर वाटर एकॉस्टिक नेटवर्क. तो इन सारी चीज़ों के लिए मल्टीपल एक्सेस सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं. अब मल्टीपल एक्सेस में 3 बेसिक टाइप्स होते हैं, एफडीएमए, टीडीएमए और सीडीएमए. सो एफडीएमए मीन्स फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टीडीएमए मीन्स टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और सीडीएमए मीन्स कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. सो हम पहला टाइप देखेंगे कि मल्टीपल एक्सेस का बेसिक एम क्या है. इट इज़ यूज टू डेवलप एफिशिएंट टेक्निक्स दैट मैक्सिमाइज सिस्टम कैपेसिटी थ्रू डायनेमिक रिसोर्सेज एलोकेशन एंड स्पेक्ट्रम रीयूज़. तो एफिशिएंट ट्रांसमिशन होना चाहिए, जितनी भी टोटल बैंडविड्थ है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, और डायनेमिक रिसोर्सेज एलोकेशन होने चाहिए. यानी हमें जहाँ पे पूरे रिसोर्सेज है जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं उनका एलोकेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए. तो इसलिए मल्टीपल एक्सेस सिस्टम हम यूज़ करते हैं. दिस इज़ द एग्जांपल कि एक ट्रांसमीटर एंटीना है जहाँ पे टोटल सिग्नल आया हुआ है, नंबर ऑफ ट्रांसमीटर से जितने भी मल्टीप्लेक्स होके गए हैं वो सैटेलाइट तक गए, और सैटेलाइट वापस नंबर ऑफ एंटीनाज तक उसको रिसीव करेगा. तो ये रिसीविंग एंड वाले एंटीनाज है, तो ये अलग अलग अपने अपने सिग्नल्स को कैरी करेगा. नाउ फर्स्ट टाइप इज़ एफडीएमए. तो एफडीएमए यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. इसमें देखिए ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, टोटल बैंडविड्थ, ये यहाँ पे जो दी है टोटल बैंडविड्थ अप टू एन, तो इसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी बैंड्स में डिवाइड किया जाता है, और ये हर यूज़र के लिए एलोकेट की जाती है. और 2 फ्रीक्वेंसीज़ के बीच में एक गार्ड बैंड रखा जाता है, सो दैट ये दोनों फ्रीक्वेंसी एक दूसरे में मिक्स ना हो, यानी किसी का सिग्नल किसी दूसरे के सिग्नल में मिक्स ना हो. नाउ एफडीएमए फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में उसको हर एक यूज़र को एक यूनिक फ्रीक्वेंसी बैंड असाइन किया जाता है. और उसका जो एप्लीकेशन है एनालॉग सेलुलर सिस्टम, एनालॉग सेलुलर सिस्टम में जो टेलीफोनिक सिस्टम होता है उसमें हम एफडीएमए यूज़ करते हैं. 2-वे रेडियो सिस्टम यूज बाय द कंपनीज, इमरजेंसी सर्विसेज, जैसे कि वॉकी टॉकी होता है पुलिस लोगों के पास में जो होता है ना, तो उसमें भी हम एफडीएमए सिस्टम यूज़ कर सकते हैं. तो इसके जो फीचर्स है वो है नो कोड वर्ड्स, इसमें कोई कोड वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी जिस वक्त ट्रांसमिट कर रहे हैं उसी वक्त रिसीव करना चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी. पावर एफिशिएंसी इज़ रिड्यूस, पावर बहुत कम लगता है, और एफडीएमए इज़ यूज फॉर द एनालॉग सिस्टम. नाउ एडवांटेजेस क्या है. ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी फिल्टरिंग एफडीएमए इज़ नॉट सेंसिटिव टू नियर फार प्रॉब्लम. ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो एलोकेट की जाती है पर्टिकुलर यूज़र्स के लिए, इसलिए नियर फार प्रॉब्लम यानी कोई इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम इसमें नहीं आता है. मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस इन टीडीएमए, कुछ प्रॉब्लम जो टीडीएमए में होते हैं वो यहाँ पे एलिमिनेट किए जाते हैं एफडीएमए में. एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क टाइमिंग का कोई हमको इशू नहीं है, इसलिए फेयरली एफिशिएंट व्हेन द नंबर ऑफ स्टेशन इज स्मॉल एंड द ट्रैफिक इज़ यूनिफॉर्मली कांस्टेंट. जब ट्रैफिक बहुत कम है, ट्रैफिक का मतलब नंबर ऑफ़ यूज़र्स अगर कम है एक ही चैनल को यूज़ करने वाले, है ना, तो जैसे ट्रैफिक हम क्यों कहते हैं, एक ही रास्ते से जाने वाले अगर 100 लोग हैं तो हमें बोलेंगे कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक ही रास्ते से जाने वाले अगर 4 या 5 ही लोग हैं तो ट्रैफिक बहुत कम है. वैसे ही एक ही चैनल को या एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज़ करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो हम उसको कहते हैं ट्रैफिक. तो नो रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द टाइप ऑफ बेस बैंड और टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि बेस बैंड कौन से फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है या कौन से टाइप का हम मॉड्यूलेशन यूज़ कर रहे हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है. वन डिसएडवांटेज ऑफ एफडीएमए इज़ क्रॉस टॉक. अगर गार्ड बैंड प्रॉपरली काम नहीं करता है या बहुत नैरो गार्ड बैंड है
तो एक सिग्नल दूसरे के एरिया में एंटर कर सकता है, दूसरे के फ्रीक्वेंसी बैंड में एंटर कर सकता है, तो क्रॉस टॉक हो सकता है, विच कैन कॉज इंटरफियरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड इंटरप्ट द ट्रांसमिशन बिटवीन द डिफरेंट यूज फ्रीक्वेंसी चैनल इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ इज नॉट यूज्ड, है ना, क्योंकि हम बैंडविड्थ को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल बैंडविड्थ जो चाहिए वो हमको बहुत लार्ज अमाउंट में होनी चाहिए। द मैक्सिमम फ्लो रेट पर चैनल इज़ फिक्स्ड एंड स्मॉल, तो हर एक को एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी बैंड दिया गया है, इसका मतलब वो उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बैंड को यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए उसकी फिक्स है बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड बैंड पास फिल्टर्स रिक्वायर्ड, है ना, हर एक फ्रीक्वेंसी को रिसीवर एंड पे आइडेंटिफाई करने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए बैंड पास फिल्टर की ज़रूरत होती है। इसकी वजह से पूरा सर्किट जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है और एक्सपेंसिव भी होता है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज TDMA। अब TDMA में पढ़ते हैं हम लोग, ईच यूज़र इज़ असाइन ए यूनिक टाइम स्लॉट। इसका मतलब है कि साइक्लिकली का मतलब अभी एक समय उसको दिया जाएगा एक यूज़र को, कुछ समय बाद फिर से उसी यूज़र को थोड़ा टाइम दिया जाएगा, फिर से उसी यूज़र को थोड़ा टाइम दिया जाएगा। जैसे हमने TDM सिस्टम में देखा A1 B1 C1 एक फ्रेम ट्रांसमिट होता है, फिर सेकेंड फ्रेम ट्रांसमिट होता है ना, तो हर यूज़र को थोड़ा थोड़ा समय कुछ कुछ देर के बाद मिलता है। सो नॉन कंटिन्यूस ट्रांसमिशन, कंटिन्यूस ट्रांसमिशन नहीं है, स्लॉट में हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। उसके बाद जो भी डिजिटल डेटा को हम ट्रांसमिट करेंगे तो हमें डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स ही यूज़ करना पड़ेगा फास्ट एफिशिएंट ट्रांसमिशन के लिए। और ये जो है डिजिटल सेलुलर सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया है इसका GSMB, 8 यूजर्स शेयर 200 किलो हर्ट्ज़, 200 किलो हर्ट्ज़ को 8 यूज़र्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ द फीचर्स ऑफ TDMA, सिंक्रोनाइजेशन इज़ नेसेसरी, टाइम डिवीजन हुआ है, इसका मतलब जिस समय पे पहला यूज़र सेंड कर रहा है उसी समय पे उसने जिसको इन्फॉर्मेशन भेजी है उसने रिसीव करनी चाहिए, अदरवाइज़ रिसीवर उस जो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहे हैं वो मिस कर देगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्लॉट डिवाइड किए गए कि ये पर्टिकुलर टाइम पे आपको डेटा को सेंड करना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है TDMA में। पावर एफिशिएंसी ऑफ TDMA इज़ बेटर देन FDMA। FDMA की लो ही है पावर एफिशिएंसी, लेकिन उससे भी कम TDMA में लगती है। इट इज़ नेसेसरी टू इंक्लूड गार्ड टाइम बिटवीन द एडजेसेंट चैनल, तो हर चैनल के बीच में गार्ड टाइम इंक्लूड करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ एक चैनल दूसरे चैनल में मिक्स हो सकता है या क्रॉस टॉक हो सकता है। एडवांटेजेस क्या है TDMA के, फ्लेक्सिबल बिटरेट, नो फ्रीक्वेंसी गार्ड बैंड रिक्वायर्ड, नो नीड फॉर प्रिसाइज नैरो बैंड फिल्टर्स, easy for mobile or base station to initiate and execute hands off, extended battery life, TDMA installation offers savings in base station equipments, पेस एंड मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस चार्जेस जो है या इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है TDMA के वो कम है। द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर अपग्रेडिंग अ करंट एनालॉग सिस्टम और डिजिटल सिस्टम, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब पैसा कम लगता है, उसका इंस्टॉलेशन के चार्जेस बहुत कम है बाकी के कंपैरिजन में। Now the disadvantages of TDMA. One of the disadvantages of TDMA is each user has a predefined time slot. However, user roaming from one cell to another are not allotted a time slot. Another problem with TDMA, अब जैसे देखिए TDMA का मेन डिसएडवांटेज है कि ये पर्टिकुलर यूज़र को एक टाइम स्लॉट अलॉट किया गया है, और अगर रोमिंग में है तो फिर दिक्कत आ सकती है TDMA की। अनदर प्रॉब्लम विथ TDMA इज़ दैट इट इज़ सब्जेक्ट टू मल्टी पाथ डिस्टॉर्शन। अब मल्टी पाथ का मतलब क्या है कि सपोज़ ये ट्रांसमीटर है, इसको रिसीवर तक सिग्नल भेजना है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में ना आते हुए कभी कभी क्या होता है बीच में कुछ भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं उसके, जैसे अगर एरोप्लेन आ गया या कोई बिल्डिंग आ गई तो ये टकरा के आएगा और हर बार अलग अलग पाथ लेके वो रिसीवर तक सिग्नल पहुंचता है, तो इसकी वजह से इंटरप्शन या क्रॉस टॉक हो सकता है, इसी को मल्टीपाथ डिस्टॉर्शंस कहा जाता है। Another problem with TDMA is that it's subjected to multipath distortion. A signal coming from a tower to a handset might come from any one of the several direction. It might have bounced off several different buildings before arriving. हो सकता है कि वो बहुत सारे बिल्डिंग्स को टकरा के आए,
जितने भी ऑब्जेक्ट उसके बीच में आ रहे हैं उससे टकरा के आए, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है रिसीविंग एंड पे। अब TDMA और FDMA इन दोनों में एक मेन स्पेशल चीज़ है कि TDMA में टाइम स्लॉट डिवाइड किया जाता है और FDMA में फ्रीक्वेंसी स्लॉट डिवाइड किया जाता है। लेकिन ऐसा जो टेक्निक जिसमें ना तो टाइम की लिमिटेशन है ना तो फ्रीक्वेंसी की लिमिटेशन है, यानी कंप्लीट बैंडविड्थ सारे के सारे यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑल द टाइम, यानी पूरे टाइम के लिए सारे के सारे यूज़र्स पूरी बैंडविड्थ अगर यूज़ कर सकते हैं विदाउट गेटिंग इंटरप्शन, है ना, तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें हर यूज़र को एक यूनिक कोड असाइन किया जाता है, जो कोड पर्टिकुलर उसी के रिसीवर को पता रहेगा जिसको उसको भेजना है। अदरवाइज़ बाकी लोगों के लिए वो कोड नॉइज़ के तौर पे काम करेगा और बाकी यूज़र्स उसको डिकोड कर नहीं सकते। तो इसलिए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो होता है वो सबसे सिक्योर माना जाता है। सो all users send receive data at the same time and at the same frequency but in code. Similar to the case many people talk to each other at the same time in the same room but with different language. ऐसा पॉसिबल है ना कि एक ही रूम में अगर 10 लोग बैठे हैं और 10 लोग मोबाइल पे बात कर रहे हैं अलग अलग लैंग्वेज में और एक ही समय में, इसका मतलब 10 के 10 ही लोग एक ही समय यूज़ कर रहे हैं और एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन किसी का डेटा किसी के साथ में जो अलग अलग लोगों के साथ में बात कर रहे हैं उसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं होता। अ कॉमन सेट ऑफ कोड्स आर द वॉश वॉल्च कोड विच आर ऑर्थोगोनल कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 0 चिप्स। अब ये जो कोड जो होते हैं जो स्पेशली अटैच किए जाते हैं हर यूज़र के साथ में, वो कोड जो है वो 1 और 0 के कॉम्बिनेशन में बने हैं और वो हर कोड ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब इन ऑल डायरेक्शन हम उसको भेज सकते हैं। चीप ड्यूरेशन इज़ मच शॉर्टर दैन द सिम्बॉल पीरियड, यानी हमारा मैसेज का जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग ये जो कोड का टाइम पीरियड है वो हमेशा कम रहता है जिसको हम अटैच करते हैं। और ये जो स्पेशल कोड होता है सीडो रैंडम कोड होता है वो नेचर में, तो उसको रैंडम कोड इसलिए कहा जाता है कि उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है लेकिन वो इंडिपेंडेंट होता है मैसेज से। ठीक है। सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं CDMA के। इंक्रीज सेल्यूलर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, साइमल्टेनियस कन्वर्सेशन, है ना। इंक्रीज एफिशिएंसी मीनिंग दैट द कैरियर कैन सर्व मोर सब्सक्राइबर्स, यानी एक ही कैरियर अलग अलग सब्सक्राइबर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। स्मॉलर फोन, लो पावर रिक्वायरमेंट्स एंड लिटिल सेल टू सेल coordination needed by the operators. Extended reach beneficial to rural users situated from the far from the cell, यानी जो सेल है पर्टिकुलर जिसमें हम कंप्लीट हमारा सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं यानी पर्टिकुलर एरिया, उस सेल से अगर दूसरे कॉर्नर में भी अगर यूज़र है तो भी उसका एक्सटेंडेड यूज़ हम कर सकते हैं, एक सेल से इंफॉर्मेशन दूसरे सेल तक पहुंचा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ CDMA, यानी अगर कोई पर्टिकुलर जो यूज़र है वो रोमिंग में भी है यानी एक एरिया से दूसरे एरिया में भी जा रहा है तो भी उसको दिक्कत नहीं आएगी वाइल टॉकिंग टू द पर्सन। ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ CDMA, ड्यू टू इट्स प्रोप्राइटरी नेचर ऑल द CDMA's फ्लॉज आर नॉट नोन टू द इंजीनियरिंग कम्युनिटी। इसका मतलब इसका जो यूनिक एक नेचर है CDMA का, प्रोप्राइटरी का मतलब खुद का कोड खुद जनरेट करता है ये, इसीलिए इंजीनियर्स के लिए भी अभी तक ये एक रिसर्च का एरिया बन चुका है कि इसमें क्या फ्लॉज आ सकते हैं यानी क्या दिक्कतें आ सकती है, ये अभी तक पूरे तरीके से इंजीनियर्स लोगों को जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको भी पता नहीं चल रहा है। CDMA इज़ रिलेटेडली न्यू एंड द नेटवर्क्स इज़ नॉट अ मैच्योर एज FDMA और GSM। ठीक है। CDMA कैनॉट ऑफर इंटरनेशनल रोमिंग अ लार्ज GSM एडवांटेजेस। अभी तक CDMA जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे काम नहीं कर रहा है जस्ट लाइक GSM। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ CDMA, वॉइस सर्विसेज के लिए है, डेटा सर्विसेज के लिए है, सर्किट स्विच डेटा के लिए है, पैकेट स्विच डेटा, मैसेज सर्विसेज, CDMA रेडियोज़, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज और CDMA रेडियो चैनल्स। तो GSM आने के पहले सारे मोबाइल जो थे वो CDMA टेक्नोलॉजीज़ पे हम यूज़ कर रहे थे। ठीक है। तो वी कैन समराइज टुडेज टॉपिक कि हमने मल्टीपल एक्सेस का मतलब देखा, हमने उसके 3 बेसिक टाइप देखे FDMA, TDMA और
CDA में। उसके बाद उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख के हर टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी लास्ट यूनिट, दैट इज़ यूनिट नंबर 5। उसका पहला वीडियो देखेंगे हम लोग, स्प्रेड स्पेक्ट्रम। थैंक यू।